Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Oswal Pumps Q1 FY26 earnings conference call hosted by Nuvama Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Achal Lohade from Nuvama Institutional Equities. Thank you, and over to you, sir. Yeah, thank you. Good afternoon, everyone. On behalf of Nuvama Institutional Equities, we welcome you all for the main conference call of Oswal Pumps Limited. The management is represented by Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Shivam Gupta, Whole-Time Director, Mr. Subodh Kumar, Chief Financial Officer, and Mr. Sanjeev Sancheti, UTUS Advisors LLP. Without further delay, I hand over the call to Mr. Sancheti by opening remarks from Mr. Vivek Gupta, and then we'll start with the Q&A session. Over to you, Sanjeev. Thank you, Achal, and good afternoon to all the participants on the call. We really appreciate you taking out time for the call and welcome you to the Oswal Pumps Q1 FY26 results call. Joining me today are the members of the senior management team of Oswal Pump, Vivek Gupta, Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Shivam Gupta, who is the whole-time director of the company, and Mr. Subodh Kumar, the Chief Financial Officer of the company. Before we begin, I would like to draw your attention to the safe harbor statement included in the earnings presentation. This has been uploaded onto the BSE and NSE website for your reference. With that, I will now hand over the call to Mr. Vivek Gupta for his opening remarks. Over to you, Vivek ji. Thank you, Sanjeev ji, and a very good afternoon, everyone. On behalf of Oswal Pumps Limited, I warmly welcome all of you to our Q1 FY26 earnings call. Let me begin by sincerely thanking all our investors and stakeholders for the welcoming response of our IPO. We are truly humbled by the trust you have placed in us, and this support inspires us to stay focused on our commitment to excellence, transparency, and long-term value creation. Now, just give you a quick background. Oswal Pumps was established in 2003, and over the last 2 decades, we have grown to become one of India's most trusted and fastest-growing manufacturer of solar pumping systems. Our product portfolio includes solar-powered and grid-connected submersible, monoblock pumps, selective motors, and solar PV modules. One of our biggest strengths is that we are fully backward integrated. We manufacture the entire solar pumping system, starting from pumps, motors to modules, structure, and BOS kit, either in-house or through our subsidiaries and associates. Pump and motors manufactured by Oswal Pumps Limited is integrated across all core processes, right from CI casting, investment casting, injection plastic molding, aluminium die cast, thrust bearing, winding wire unit, automatic winding wire unit, cable manufacturing, stamping, and packaging. The solar modules are produced through our fully owned subsidiary, that is Oswal Solar Structure Private Limited. Solar structure and BOS kit come from our associate company, Valso Solar Solutions Private Limited, which we hold around 38.5% stake. Our deep integration helps us ensure consistent product quality, reduce dependency on external vendors, manage cost and delivery timelines more effectively, and consequently achieve industry-leading margins. Now, coming to the market environment, over the last few years, we have aligned ourselves with key government initiatives that promote renewable energy in agriculture. One such initiative is the PM Kusum scheme, and I'm very happy to share that we have been a consistent contributor to it. As of June 30th, 2025, we have supplied for around 48,900 turnkey solar pumping system directly under this program. With direct participation through supplies to our EPC players, our life-to-date market share stands at 31%. Our deployments span across key states like Maharashtra, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, where we have built strong relationships with our stakeholders. As of July 31st, 2025, our order book stood at 29,961 pumps, and we continue to see healthy momentum backed by both
sectoral tailwinds and policy support. Importantly, we are also anticipating to launch of PM Kusum 2 by the end of this fiscal, and we expect it to be larger in scope compared to the first phase. And given our integrated model and execution capabilities, we are very well positioned to benefit from these upcoming opportunities. Now, moving to our financial performance, I am happy to report that Q1 FY26 has been a record quarter for Oswal Pumps. We have achieved our highest ever quarterly operating income, EBITDA and PAT. Operating income stood at around 5,139 million. That's growth of 36.8% year-on-year and 40.9% quarter-on-quarter. Our PAT also grew 48.2% quarter-on-quarter and 947 million with an industry-leading margin of 18.4%. With that, I will now hand over to our CFO, Mr. Subodh Kumar, who will walk you through the financials and more detail. Over to Subodh. Thank you very much, Vivek sir, and good afternoon, everyone. So I will now take a few minutes to walk you through the financial highlights of the quarter ended 30 June 2025. So as mentioned earlier, I hope you have had a chance to review our earnings presentation and press release. Let's begin with the top line. So, operating income for quarter 1, financial year 26 stood at 5,139 million, which represents a 36.8% growth year-on-year and a 40.9% increase quarter-on-quarter basis. Operating EBITDA came in at 1,408 million, reflecting a 38.7% year-on-year and 42.4% quarter-on-quarter growth. This translates to an EBITDA margin of 27.4%. Profit after tax was 947 million, up by 34.2% year-on-year and 48.2% quarter-on-quarter basis, with a PAT margin of 18.4%. Now, on to return ratios and balance sheet metrics. Despite the capital infusions and our returns ratios remain strong. Return on net worth stood at 41.6%. Return on capital employed was 50.6%. Our cash conversion cycle stood at 136 days at the end of June 2025. We reported a net debt position of negative 89 million, supported by strong cash flow and repayment of our borrowing through IPO proceeds. Speaking of the IPO, as you are aware, the primary objective was to fund capacity expansions and reduce debts. Out of the total fresh issue proceeds of 8,415 million, we have already deployed approximately 3,085 million towards these goals. Looking ahead, backed by our strong order backlog and supportive industry tailwinds, we are confident in sustaining our growth momentum. For financial year 26, we are targeting revenue growth in the range of 50 to 60% with a medium-term goal of maintaining a CAGR of 30 to 35%. On the profitability front, we are guiding for operating EBITDA margin in the range of 27 to 29% and a PAT margin between 18 to 20%. We remain committed to disciplined executions, financial prudence, and sustainable growth. And now, with that, we are open the floor for the questions. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. First question is from Aman Saifi from Stallion Asset Management. Please go ahead. Hello. I hope I'm audible. Yes, it's slightly disturbing, but you're audible. Yeah. So, sir, we have an order book which we have reported around 30,000 odd pumps. What is the period of execution for this order? So, basically, sir, जो भी orders हमें PM Kusum से मिलते हैं, so the condition of government is we have to execute within 120 days of entire order. So, इसलिए, so we have a time to execution is around 120 days. Maybe
कुछ ऑर्डर्स कुछ स्टेट्स में हमें और 30 डेज का टाइम मिल जाता है. सो टिपिकली मैक्सिमम डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 150 days. Got it. Got it. So, within 2 quarters, we can see the execution of this 30,000 odd pumps happening. Yeah, absolutely. Absolutely. Got it. Got it. Within time, we will execute all these 30,000 pumps orders. Got it. Got it. And sir, my second question is around our performance has been very resilient for the last 2 quarters. That's very superb. But we are seeing that our competitor is experiencing some slowdown in terms of execution, and their order book as well has been compressing. Is there some challenges which is there in the industry in terms of cell supplies or anything even we are been experiencing? देखिए, अगर हम ओसवाल पंप्स लिमिटेड की बात करते हैं तो हमें किसी तरह के भी रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट से लेके या सेल से लेके कोई भी इशू नहीं है. एंड वी आर फुल्ली बैक्ड, हर चीज में बैक्ड है. तो हमारा जो भी क्लैरिटी है वो बहुत इजीली हम लोग अचीव कर रहे हैं. सो हमारी हर चीज बिल्कुल पैक्ड है और इन लाइन है हर चीज. सो आई थिंक ओसवाल पंप्स लिमिटेड को कोई इशू नहीं है. Understood, sir. And just one last question, sir. What kind of EBITDA margin is sustainable for the coming years? We can expect 28-29% kind of operating margin. या देखिए, जैसे हमने बताया कि वी आर लुकिंग द EBITDA मार्जिन इज अराउंड 27 to 29%. और ये जो EBITDA मार्जिन है ये हम इसको बिल्कुल क्लैरिटी से देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे. So absolutely there is no disconnection for our team, and entire team is very much confident. So absolutely we are very confident. Got it, sir. Understood. Thank you so much for this. All the best. Thank you. Next question is from Sagar Dhawan from ValueQuest. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity and congratulations on a good set of numbers. Sir, we are seeing significant uptake in the state level execution, which is X of PM Kusum, which you've shown in the PPT of 253 crores of execution happening in the quarter. Just wanted to understand how much is Magentala as part of this, or is it largely Magentala scheme? So basically, yes sir. देखिए, बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो पीएम कुसुम के अंडर टोटल ये पंपिंग सिस्टम, सोलर पंपिंग सिस्टम आता है. और मागलतेला गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट को एक फैसिलिटी दी हुई है कि अगर पीएम कुसुम 2 के आने से पहले कोई भी स्टेट को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो वो अपने यहाँ से टेंडर निकाल के वो उसको क्वांटिटी को आगे सर्विस कर सकता है. तो दैट इज द मागलतेला स्कीम इज दैट कि वहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने आप से स्कीम निकाल दी है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30% की सब्सिडी कुसुम 1 के अकाउंट में रखी हुई है 30% के हिसाब से, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है. सो यहाँ पर किसी भी तरह का डिले ना हो. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो दे डोंट वांट टू वेट फॉर कुसुम 2. कुसुम 2 अगर किसी वजह से डिले भी होती है, मतलब जो पीछे डिले हो रही थी, तो अब तो बिल्कुल टाइम पे चल रही है और इसी साल में कुसुम 2 को लॉन्च होने में कोई इशू नहीं है. लेकिन महाराष्ट्र स्टेट और भी एग्रेसिव चल रही है. तो एब्सोल्युटली मागलतेला अभी बहुत एग्रेसिव चल रही है, बट ब्रॉडली इट इज अ पार्ट ऑफ पीएम कुसुम. समझ गया सर, अंडरस्टूड. सर, मागेंतेला स्कीम पे और थोड़े डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे ये स्कीम का टारगेट कितना है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है अभी तक, और आपका मागेंतेला का ऑर्डर बुक अभी कितना है? देखिए, अभी अगर आप बात करें महाराष्ट्र में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मागलतेला के ही ज्यादा चल रहे हैं. ठीक है. तो मागलतेला में ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 5 लाख पंप लेके चल रही है. सो जैसे जैसे 1-1 लाख पंप का ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, वो 1-1 लाख के ऑर्डर्स 1-1 लाख के टेंडर निकालती जा रही है. सो उसका जो ब्रॉड विजन है वो 5 लाख पंप का है और वो जल्दी से जल्दी है 5 लाख पंप इंस्टॉल करना चाहती है ताकि उनके पास और भी ज्यादा जो पंप की डिमांड आ रही है वो उसको आगे के लिए देख सके. अंडरस्टूड. एंड सर, आपका ऑर्डर बुक अभी कितना होगा मागलतेला का? सर, ये हमारा जो हमारा मागलतेला का जो ऑर्डर है वो 8,500 पंप का है जो अभी है. अंडरस्टूड, ठीक है. पर सर, ये जो नए स्टेट्स में भी स्कीम्स आ रही है, जैसे एमपी में भी अपना खुद का एक स्कीम अभी आ रहा है, तो उसका बिड पाइपलाइन वगैरह कितना होगा? एनी आइडिया ऑन दैट?
देखिए, अभी आज के दिन जितनी भी इंडिया में नई स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है या असम है, मेघालय है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आज ओसवाल एक ऐसी कंपनी है जो हर एक स्टेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और हर स्टेट में, एमपी में भी ओसवाल बहुत एग्रेसिवली और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है जितने भी टेंडर्स में है। और एमपी बहुत बड़े वे में, एमपी का ओरिजिनल प्लान 30 लाख पंप का फर्स्ट प्लान है तो इंस्टॉल 30 लाख पंप। और डेफिनेटली ओसवाल वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और नॉट इवन इन एमपी, इन ईच एंड एवरी स्टेट, लाइक इवन वी आर गोइंग इन लेह एंड लद्दाख, इवन हम इस ज्योग्राफी में भी जा रहे हैं। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू, ओसवाल को कोई इशू नहीं है वहां पर। Understood, sir. One last question from my side is on working capital. So we have seen some increase in the working capital compared to March, in June quarter also. The receivable days have risen. So any guidance on working capital days for by FY26, what number are we looking at? मतलब you are talking about debtor days, you are talking about receivable cycle or receivable cycle. रिसीवेबल ही बता दीजिए, मोटा मोटी पेबल एंड इन्वेंटरीज गेटिंग लॉक्ड ऑफ। ओके, देखिए हम लोग, सबसे अच्छी बात ये है कि एज पर प्लान जो हमारी कंपनी में चल रहा था, जो हमें दिख रहा था, आज के दिन उससे बेटर हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। ब्रॉडली हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो रिसीवेबल साइकिल है, इट विल बी अराउंड 140 to 160 डेज इन बिटवीन, बट एट प्रेजेंट दैट वी आर अचीविंग इन 125 डेज टू 126 डेज में हमारा रिसीवेबल साइकिल चल रहा है आज के दिन। सो ये हमने बहुत अच्छा अचीव किया इस क्वार्टर में। और सेकंड, यही हमें आगे के लिए दिख रहा है कि अराउंड इसी के आसपास हमारा रिसीवेबल साइकिल रहेगा इस फिजिकल ईयर में। बट डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रेसिवली रिसीवेबल साइकिल को कम करने में प्लान कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये रिसीवेबल साइकिल जो 120, 25, 30 दिन का है, ये इससे भी 30 डेज से और कम होने वाला है। सो यहाँ पर भी हम लोग बहुत बुलिश हैं इस मामले में, और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, सबसे बड़ी बात। एंड कैश फ्लो भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कितना कैश फ्लो में हम चल रहे हैं? अभी इस क्वार्टर में हमारा करीब पॉजिटिव कैश फ्लो है, अराउंड 106 करोड़ के आसपास का हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो है। सो डेफिनेटली कंपनी बिल्कुल एज पर प्लान, एज पर सिस्टम बहुत ठीक चल रही है। या प्लीज। Understood, sir. Thank you so much and all the best. Thank you, sir. Thank you. Next question is from Mayur Patel from 361 AMC. Please go ahead. Yeah, please, Mayur. Hi, congratulations. Just one question, any update on the upcoming capacities, new capacities जो आ रही है अपनी? सर डेफिनेटली जैसे आईपीओ प्रोसीड्स में के बाद हमने प्लान किया था कि हम अपने पंप्स की कैपेसिटी जो अभी एग्जिस्टिंग 2 लाख पंप के आसपास की है, वो हम लोग 5 लाख पंप से ज्यादा की कैपेसिटी करने वाले हैं। सो ऑलरेडी कंपनी ने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है, एंड वी आर क्वाइट वेरी होपफुल एज पर टाइमलाइन हम लोग ये अचीव करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली सेम जो सोलर मॉड्यूल में 1.5 गीगावाट का हमने प्लान किया था एक्सपेंशन के लिए, सो अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट अपना कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। एज पर प्लान बिल्कुल राइट चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग आईपीओ पूरी जर्नी से फ्री हुए हैं जस्ट। सो क्वार्टर का थोड़ा सा ये हुआ है, तो अब हम बहुत तेजी से ही इसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिस्कनेक्शन। Sure, sir. And Kusum 2 का, do you think it would be end of the fiscal year, or there is are you hearing anything, any update on that front in terms of policy making? एब्सोल्युटली सर, अभी रिसेंटली करीब 4-5 दिन पहले MNRE की मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में, और वहां पर द एजेंडा दो बात का एजेंडा था। एक तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी वेंडर्स का जो पेमेंट साइकिल है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो, जल्दी से जल्दी सब वेंडर्स को पेमेंट मिले। सो दैट वाज द वन एजेंडा। एंड द सेकंड एजेंडा वाज कि जो पीएम कुसुम 2 है, गवर्नमेंट चाहती है, तो गवर्नमेंट ने वहां पर सब स्टेट एजेंसीज को भी बुलाया हुआ था। तो उन्होंने ये एक कॉल दी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट हमें दीजिए, ताकि हम पीएम कुसुम 2 एक बड़े एग्रेसिव वे में और बड़ी क्वांटिटी में लॉन्च कर पाए। तो ये गवर्नमेंट है। तो डेफिनेटली इस फिजिकल ईयर
में तो लॉन्च होनी ही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्री को डाउट नहीं है। मे बी शायद उसे 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी लॉन्च हो सकती है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के एफर्ट चल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग बहुत श्योर हैं और बहुत कंफर्टेबल भी हैं। Sure, sir. Thank you. I'll get back to that. Thank you very much. Thank you. Next question is from Akash Jha from AJ Wealth. Please go ahead. Yeah, please. Hi, sir. Am I audible? Yeah. Hi, Akash ji. Congratulations, sir, for a great set of numbers. So, मेरा सर पहला क्वेश्चन था ये पीएम कुसुम स्कीम को लेके, हमारा करंट एक्सपोजर कितना है सर इसमें? पीएम कुसुम आप इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं? यस सर। ओके, इस क्वार्टर में अराउंड हमने पीएम कुसुम में 300 कितना इस क्वार्टर में? हाँ नहीं डायरेक्ट भैया करीब हमने 340 करोड़ के आसपास का डायरेक्ट बिजनेस किया है इस क्वार्टर में पीएम कुसुम। 340 सर, 340 या एंड इसके अलावा अगर हम पीएम कुसुम में इनडायरेक्ट में बात करते हैं तो करीबन करीब 30 करोड़ का बिजनेस और हमने इनडायरेक्टली किया है, जो हमारे ईपीसी प्लेयर्स है उनको मटेरियल सप्लाई किया है। तो तकरीबन 370-380 के आसपास का हमने पीएम कुसुम में बिजनेस किया है। ओके, एंड ये सारा सर कंपोनेंट बी से ही आता है अभी तो हमारा? यस, 100% अभी टोटल कंपोनेंट बी से आ रहा है। तो आगे कोई प्लान है सर कंपोनेंट सी में कुछ आगे करने का? देखिए ऐसा है, अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो पिछले 10 साल में 12 साल में कंपोनेंट सी में कोई भी काम नहीं हुआ है। इसका रीजन ये था कि कंपोनेंट सी कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या वेंडर को कभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को बहुत समझा है और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम कुसुम 2 में आ रही है तो वो ट्राई करिए आइदर एक ही स्कीम में आएगी और अगर वो 2 स्कीम में आती है तो वो स्कीम बहुत क्लैरिटी के साथ आएगी, ना कि पिछली तरह की जो कुसुम सी में बहुत क्लैरिटी नहीं रही है। तो डेफिनेटली अगर क्लैरिटी रहेगी तो ओसवाल विल बी द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट, ये बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, बट क्लैरिटी शुड बी देयर, दैट इज द पॉइंट। ओके सर, एंड एक हमारा सर एक्सपोर्ट्स का कितना रेवेन्यू शेयर होगा? सर देखिए ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं FY25 की तो हमारा करीब 4% के आसपास का हमारा 4-4.5% का हमारा ब्रॉडली एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था, जो कि 30-40% के हिसाब से हमारा ग्रो कर रहा है। और साइमल्टेनियसली अगर हम FY26 की बात करते हैं यहाँ भी हमने 40 से 50% की ग्रोथ एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत क्लियर दिख रही है। तो परसेंटेज ऑलमोस्ट मुझे लगता है यही कितना क्वार्टर इसमें हम लोग क्वार्टर 1 की बात करें तो यहाँ पर हम 3% के करीब हमने अचीव किया है। But the target is to keep it around about 4%, 4.5%. अगर हम 4% अचीव करते हैं टोटल में तो इट विल बी मोर, द ग्रोथ विल बी मोर देन 50%। ओके, एंड मार्जिन इसमें हायर होता है सर इन कंपैरिजन? नहीं, देखिए आज के दिन में ओसवाल पंप्स लिमिटेड ने सोलर पंपिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी अपनी एक्सपर्टीज बनाई है पिछले कुछ सालों में और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेट किया अपने आप को। सो डेफिनेटली सोलर पंपिंग सिस्टम में हमारे मार्जिन सबसे अच्छे हैं एंड अगर मैं सेकंड लाइन में बात करता हूँ मार्जिन तो डेफिनेटली देन एक्सपोर्ट विल बी द सेकंड मार्जिन लाइन। ओके, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये हमारा सर मतलब जो ओसवाल पंप है अगर हम इसको बाकी प्लेयर से कंपेयर करें तो क्या हमारा स्ट्रेंथ होगा, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा? देखिए ओसवाल पंप्स लिमिटेड के स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि हम 100% ऑलमोस्ट 100% फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब पंप मोटर कंट्रोलर में लगने वाले सभी पार्ट्स भी हम लोग इन हाउस बनाते हैं। सेकंड, फिर सोलर पंपिंग सिस्टम के अंदर भी इंडिया में वी आर द ओनली कंपनी जो 100% फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। वहां भी हम लोग पंप मोटर कंट्रोलर, सेकंड पीवी मॉड्यूल, देन स्ट्रक्चर, देन बीओएस बनाते हैं। इसके अलावा हमारी मेजर स्ट्रेंथ आती है कि आज इंडिया में सोलर पंपिंग सिस्टम में सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क आज ओसवाल के पास है। इज द बिगेस्ट नेटवर्क वी हैव। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो करीब वी हैव 500 पीपल सर्विस में है हमारे पास जो अक्रॉस इंडिया है।
सो दैट इज अगेन हमारे पास बहुत बड़ा पैन इंडिया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, जो हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है कि हम किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी जगह एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सोलर में बढ़ रहे हैं, एक रीजन है हमारा। प्लस हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ ओसवाल की फ्रॉम 55 ईयर्स से है। ओसवाल ब्रांड की जो एज है अराउंड 55 ईयर्स की है और पर्टिकुलर इन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। सो वहां पर हमारी इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमारी टीम पिछले 20 साल से ओसवाल पंप्स लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली इज द मोस्ट एक्सपर्ट टीम, और स्पेशल उनका जो एक्सपर्टीज है वो एग्रीकल्चर फील्ड में है। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल एज वैल्यू इंजीनियरिंग, हमारी R&D टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वो सब की वजह से हम अपने मार्जिन सस्टेन कर पा रहे हैं। सेकंड, नए प्रोडक्ट्स इसलिए निकाल पा रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज है। और डेफिनेटली आज हमने कुछ सालों में ही ओसवाल ने सोलर पंपिंग में सबसे बड़ा स्टेक होल्ड किया है। इसका रीजन है कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड रेवेन्यू गाइडेंस सर हमारे इस साल का कितना होगा? 50%? सर हम इस साल जो FY26 है, यहाँ पर हम करीब 50 to 60% की ग्रोथ देख रहे हैं। 50। ओके सर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next question is from Tushar Gupta from Sagun Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity and congratulations for great set of numbers. सर आप ये बता सकते हैं कि हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है? देखिए, करंट कैपेसिटी अभी तक हमारी है 2 लाख पंप की, जो कि अब हम लोगों ने ऑलरेडी जो प्लान किया था कि IPO प्रोसीड से हम अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे, सो वो हम ऑलरेडी स्टेप इन हो चुके हैं। और ऑलरेडी हमारी कंपनी ने वो सब एक्सटर्नल मशीन्स के ऑर्डर देना वो सब ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सो डेफिनेटली विद इन टाइम वो सब चीज अचीव करने वाले हैं, ताकि जो इस साल का रेवेन्यू है वो हमें किसी तरह को अचीव करने में कोई दिक्कत ना हो। और वो प्लीज कंटिन्यू सर, हम ये कैपेसिटी को कितना बढ़ाने वाले हैं, और कैन यू प्लीज ऑल्सो टेल द टाइमलाइन अबाउट दिस? देखिए, ये कैपेसिटी जो 2 लाख पंप की है, हम इसको 5 लाख पंप से ज्यादा की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, तकरीबन 5 लाख और 5 लाख से प्लस। एंड हमारा टारगेट है विद इन ए ईयर हम ये पूरी कैपेसिटी को अपनी अचीव कर लें, क्योंकि इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमें कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी फेजेज वाइज में रहेगी। ऐसा नहीं कि 5 लाख पंप की रिक्वायरमेंट हमें FY26 में रहने वाले है, ये हमने ब्रॉडली आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ। सो जो इस साल की कैपेसिटीज है वो हम आने वाले 4 से 5 महीने में अचीव कर लेंगे, ताकि हमें किसी तरह के रेवेन्यू और अपने जो प्लान्स है उसके अंदर कोई भी डिस्कनेक्ट ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Next question is from Bala Subramaniam from Arihant Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Thank you so much for the opportunities and congratulations for good set of numbers. Sir, my first question regarding we are setting up 1.2 gigawatt solar modules, and right now all the government related projects are required DCR content modules. Right now, we are procuring solar cells from domestic players, or are importing cells from China or other countries, because big players they have a backward and forward integrations. Whatever cells they are producing, they used for making models. So whether how we are sourcing all these solar cells as the first thing. Another second thing is the monopod technologies or top one technologies we are doing for the solar modules capex. देखिए, मैं जी आपकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा क्लियर समझ नहीं आई है, लेकिन जो समझ आया आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो जो हम सोलर सेल्स हैं वो इंडिया से प्रोक्योर कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। तो और उस प्रोक्योरमेंट में हमें कोई चैलेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, या चाइना के कंपैरेटिवली प्राइसेस को लेके क्या इशू है, या इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को लेके इशू है, हम राइट यही पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, यस सर, यस सर, राइट। यही ठीक है सर। देखिए, पहला क्वेश्चन है। ओके सर, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग PM कुसुम में सोलर पंप सप्लाई करते हैं,
and we are making only solar modules. So हम लोग इंडिया से we are procuring cells because PM Kusum scheme में we cannot import cells from China. So we have to use only indigenous cells, that is a DCR cells. So उसके साथ हम यूज करके इस स्कीम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट. सो एब्सोल्युटली जो इंडिया में प्राइसेस हम लोगों को इंडियन कंपनीज दे रही हैं, स्पेशली वी आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम 2 कंपनीज, वन इज प्रीमियर एनर्जी एंड द सेकंड इज जुपिटर. सो उनसे हमारे पूरे साल के MOU साइन है, द प्राइस इज ऑलरेडी फिक्स्ड. तो हमें जो PM कुसुम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो वहां पर प्रॉफिट को लेके या किसी तरह की अवेलेबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं है. सेकंड, चाइना के प्राइस से हमें कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डेफिनेटली हम लोग चाइना के सेल यूज ही नहीं कर सकते. सो इसलिए ओसवाल के लिए वो आउट ऑफ क्वेश्चन है. थर्ड, अब अगर इनोवेशन की बात आती है, क्योंकि हम लोग सोलर सेल के मैन्युफैक्चर नहीं है, वी आर ओनली PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एंड PV मॉड्यूल इज ओनली असेंबली लाइन. सो वहां पर टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है. सो डेफिनेटली हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है. जो भी इफेक्ट है वो सोलर सेल में टेक्नोलॉजी का आएगा. So that's we are clear. So we are running in a very safe mode. Yeah. Got it, sir. Sir, my second question. Yeah, Hello. Sir, my second question on the new product launches side. We are planning to launch industrial pumps like helical rotors, PCP. Just want to understand what is the R&D budget and when we are planning to launch these products. इंडस्ट्रियल पंप्स की बात कर रहे हैं, हेलिकल पंप्स की बात कर रहे हैं, PCP एंड स्पेशल पंप्स की बात कर रहे हैं. सो ऑलरेडी हमारी कंपनी ने, हमारी टीम ने उसमें R&D ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. और जैसे अब प्रोसीड्स हमारे पास आए हैं तो उसकी हम कुछ मशीन्स की भी प्लान कर रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली स्लो धीरे धीरे हम लोग एक एक प्रोडक्ट करके मार्केट में सैम्पलिंग करने वाले. आई थिंक एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर में हम हेलिकल पंप को लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में एज ए सैम्पलिंग. तो जैसे जैसे सैम्पलिंग जाएंगे उसके बाद वो मार्केट साइज कैसे रहेगा क्या नहीं है, वो धीरे धीरे हमारी टीम उस पर काम करी. और इस पूरे प्रोजेक्ट पे लाइक इंडस्ट्रियल पंप्स, बॉयलर फीड पंप्स, केमिकल पंप्स, PCB पंप्स, इस तरह के जो स्पेशल हाई प्रेशराइज पंप्स, इस तरह की जो पंपिंग है, गवर्नमेंट ओसवाल का बहुत बड़ा इसमें फोकस है कि आने वाले हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जाए और मार्केट की उसको एक्सप्लोर करती जाए. तो डेफिनेटली ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया कंपनी ने. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. Next question is from Amit Agicha from HG Hawa. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, thank you for the opportunity, sir. So my question is, like, what is the net realization of the pump, and second question was, Sir, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, प्लीज आप. Yeah, am I audible now? सर आप ऑडिबल है बट थोड़ा सा ना ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस. सर मेरा सवाल था सर, नेट रियलाइजेशन क्या है? क्या सर? नेट रियलाइजेशन ऑफ द पंप. नेट रियलाइजेशन ऑफ पंप. यस. ओके, मतलब मैं कैसे दूँ? अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द HP ऑफ पंप और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. ओके, इसमें हमारे मल्टीपल वेरिएंट्स. अगर हम सोलर पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं, सो देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स. अगर हम 3 हार्स पावर के पंप की बात करते हैं तो द कॉस्ट इज अराउंड 1,80,000 in between to 1,90,000. And if you talk about 5 HP pumps, so it will be around 235,000 to 2,50,000. And if you talk about 7.5 HP, that is around 3.25 lakh to 3.5 lakh. And 10 HP is around 4.5 lakh approximately. So that is the net realization value. And the second question was about the balance IPO proceeds. Like, how do you plan to utilize? सर देखिए, बैलेंस जो टोटल IPO प्रोसीड के जो प्लान थे, आउट ऑफ 840 करोड़ करीब 330 करोड़ का हमने लोन रिपेमेंट का वो हमने ऑलरेडी कर दिया है टोटल कंपनी में. सो रिमेनिंग जो था वो 360 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का प्लान है, वो भी ऑलरेडी कंपनी ने प्लान लेना शुरू कर दिया है.
एंड जो बाकी बचा था वो जीसीपी का है. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वो ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में हमने इंफ्यूज कर दिया है. सो दैट इज द पॉइंट. Thank you, sir, and all the best for the future. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next question is from Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. Hello, sir. Hello, Ankur. Congrats for good set of numbers, sir. सर मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, ये जो 30,000 पंप्स है, इसका रफली हमारा ऑर्डर बुक वैल्यू कुछ आप बता सकते हैं कितना होगा? रफली आप मान लीजिए इसकी सर 700 से 800 करोड़ के बीच में. 700 से 800 करोड़. ओके सर. एंड सर ये जो कुसुम 2 कह रहे हैं, तो मतलब ये 700-800 करोड़ आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर में करेंगे, तो मतलब बाकी सब ग्रोथ हमारा कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम काफी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस जिस ये जो ऑर्डर बुक है. देखिए ये आपको मैं अंकुर जी एक बात बताना चाहूंगा. ऑर्डर्स की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम अभी और 800 करोड़ के ऑर्डर्स गवर्नमेंट से लेना चाहें तो वो हमें मिल सकते हैं, लेकिन वो हमें 120 डेज में पूरे करने पड़ेंगे या मैक्स 140-150 डेज में पूरे करने पड़ेंगे. तो हम उतना ही ऑर्डर गवर्नमेंट से प्रोक्योर करते हैं जो हम टाइमली उनको सप्लाई कर पाए. नंबर 1 पॉइंट, ताकि हमारे क्रेडेंशियल या कोई भी चीज में दिक्कत ना आए. सेकेंड, इस साल ये जो FY26 का फिजिकल ईयर है, इवन नेक्स्ट 2 क्वार्टर जो हमारे FY27 के हैं, वहां तक सोलर पंप सप्लाई में किसी तरह का भी कोई भी डिस्कनेक्ट ओसवाल को नहीं है. नंबर 1 पॉइंट. सेकेंड, बट उससे ही पहले इसी फिजिकल ईयर से पहले ही PM कुसुम 2 बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है इन अ वेरी वेरी बिगर वे. सो वो जो आने वाली है, अब चैलेंज ये नहीं है कि हमें क्या करना है. हमें चैलेंज ये आना है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को PM कुसुम के लिए बड़े वे में और तैयारी करते हैं. दैट इज द ओनली चैलेंज. हमें बिजनेस मिलने का या क्वांटिटी मिलने का कोई चैलेंज नहीं है. दैट वी आर वेरी श्योर. गॉट इट सर. एंड सर अगर बाय चांस अगर कुसुम 2 डिले होता है तो हमारे पास बैकअप में मतलब क्या प्लान है? हाउ डू वी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज? देखिए, अगर PM 2 अगर किसी भी वजह से डिले होता है तो देखिए हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है, ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ऑर्डर लूज कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर हम डेफिनेटली अचीव करेंगे. सेकंड, हमारी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट है, वहां भी हम बहुत बड़े ऑर्डर्स लूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी अपना उधर भी बहुत ध्यान रखेगी. और सोलर पंप की मार्केट अब जो मेरा मेन मानना है कि ये PM कुसुम 2 पे ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होने वाली है. ये एक फ्लड आ चुका है पूरे इंडिया में, जो कि हर एक फार्मर की अभी ये नीड बन गई है. फार्मर को आज पंप चलाने के लिए या तो सोलर पंप चाहिए या बिजली का पंप चाहिए, और आज गवर्नमेंट के पास बिजली देने के लिए नहीं है. और बिजली उसकी कॉस्ट, मान लीजिए आज कोई भी फार्मर आज नया बिजली का कनेक्शन अप्लाई करता है 10 हाथ पावर के लिए, सो द इनिशियली वन टाइम कॉस्ट इज अराउंड 5 लाख रुपीज टू गेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन एज वेल एज द पंप कॉस्ट. और वहां पर अगर प्राइवेट मार्केट से वो सोलर पंप प्रोक्योर करता है 10 HP का, द कॉस्ट इज अराउंड 3.5 लाख रुपीज. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो फार्मर के लिए प्राइवेट मार्केट से भी सोलर पंप लेना विदाउट सब्सिडी इज मोर वायबल देन ग्रिड कनेक्टेड पंप. नंबर 1 पॉइंट. इवन देन यहाँ पर फार्मर प्राइवेट मार्केट में करीब 97% तक का लोन भी प्राइवेट बैंक, ये SBI बैंक या वो सब, उनसे हमारा एक्सक्लूसिव टाइप भी है. तो वहां से फार्मर को 97% तक का लोन मिल सकता है विदाउट एनी कोलेटरल. वही पंप रहेगा जो कोलेटरल में. तो यहाँ पर PM कुसुम 2 या 1 आज एक डिपेंडेबल नहीं है. अब मार्केट बहुत बड़ी एक्सप्लोर हो चुकी है. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि PM कुसुम में गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है, तो हर फार्मर ये चाहता है कि मुझे फ्री में पंप मिले, तो डेफिनेटली ही विल वेट एंड ही इज वेटिंग. सो लेकिन अगर बाई चांस गवर्नमेंट ये क्लियर करती है कि नहीं, मैं कोई सब्सिडी नहीं देना चाहती हूँ या मैं स्कीम बंद कर रही हूँ, तो मार्केट में इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा तूफान आने वाला है, इतनी बड़ी डिमांड आएगी कि कोई लिमिट नहीं होने वाली है. वो मार्केट बड़ी ओपन है और वहां पर भी ओसवाल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि ओसवाल के पास फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है पूरे इंडिया में. तो द कॉस्ट बेनिफिट में सबसे बड़ा ओसवाल रहने वाला है. नेटवर्क में ओसवाल के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है. सर्विस नेटवर्क ओसवाल के पास सबसे बड़ा है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो वहां पर ओसवाल इज क्वाइट वेरी सेफ. Sure, sir. Thank you for elaborate answer. Thank you and all the best. Thank you very much, sir. Thank you. Next question is from Ashish Upanalawar
from InvestQ PMS. Please go ahead. Yes, सर ये समझना था कि आपने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है 50-60%, तो हम लोग एक 2200 करोड़ जैसा नंबर लेके चल रहे हैं for 26 के लिए, तो क्या ये 2500 करोड़ जैसा हो सकता है? इवन आप बोल रहे हैं डिमांड मतलब ऑर्डर का कोई इशू नहीं है. दूसरा, इसका थोड़ा बिल्डअप अगर आप बताएंगे कि महाराष्ट्र और एमपी में कैसे बिल्डअप देख रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेंडर्स महाराष्ट्र से इन दिस ईयर, एंड एमपी में क्या ट्रैक्शन देख रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बिकॉज डॉट नंबर 30 लाख का तो ठीक है, लेकिन एनुअलाइज बेसिस पे हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें इसको बिल्डअप? और FY27 में आप क्या देखेंगे अगर इतनी ग्रोथ हमारी होने वाली है तो FY26 में? ओके, देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग इस साल 50 to 60% ग्रोथ देख रहे हैं, जो कि हमें वो ग्रोथ बिल्कुल श्योर अचीवेबल लग रही है, जहां पर हमें कोई भी कंसर्न नहीं लग रहा है. तो वो हम आपको बिल्कुल क्लियर विजन दे रहे हैं. और डेफिनेटली चूंकि हम लोग बहुत ही स्किल्ड प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपर्टीज इसमें चाहिए, सो ऑर्डर्स की वजह से हम 2500 या 3000 या 2800 नहीं अचीव करते, वो कोई इशू नहीं है. इशू ये है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, हमें अपनी ट्रेनिंग, हमें अपने लोगों को बहुत ट्रेन करना पड़ता है. सो एवरी डे एंटायर इंडिया में हमारी बहुत ट्रेनिंग चलती है, और हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा ऑर्डर्स या ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में अपने किसी भी क्वालिटी में, सर्विस में या अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कोई भी ओसवाल कंप्रोमाइज करे. तो वो हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी इशू है. तो 2500 करोड़ या 2800 करोड़ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उतनी ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो, नंबर 1 पॉइंट, जो हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कर पाए, जो हमारे कस्टमर को सर्विस में सेटिस्फाई कर पाए, और हमारी सबसे बड़ी बात हमारी एंटायर टीम सेटिस्फाई हो कि हमें जो प्रोडक्ट और सर्विस दी है वी आर क्वाइट सेफ. नंबर 1 पॉइंट. सेकंड आपका क्वेश्चन था सर, महाराष्ट्र में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेंडर ये सर? आज की डेट में अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट स्टेट जो कि सबसे ज्यादा पंप इंस्टॉल कर रही है. सो डेफिनेटली महाराष्ट्र में हमारा पूरी स्कीम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है. सेकंड, हरियाणा में भी हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, और राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी में हो सकता है थोड़ा स्लो चले स्टार्टिंग में, बट जैसे एमपी के प्लान है या एमपी गवर्नमेंट बहुत तेजी से चाहती है, बट डेफिनेटली उन्होंने अभी तक एग्रेसिवली नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई है. तो स्लाइटली इनिशियल जो टीचिंग प्रॉब्लम किसी भी स्टेट को आती है वो सब उनको आ रही है, बट जैसे ही वो टीचिंग प्रॉब्लम निकलेंगी तो मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र स्टेट जितना एग्रेसिव अभी चल रहा है उतना ही एग्रेसिव एमपी स्टेट चलने वाला है. सो इवन देन और बहुत स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं. आसाम हो गया, मेघालय हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू लेह लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया. तो ये सब स्टेट में हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं. तो बट अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो महाराष्ट्र विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर. सर, आपने स्टार्टिंग में कुछ 5 लाख का टेंडरिंग ये साल ऐसा कुछ बोला था महाराष्ट्र में, तो ये साल के लिए बोला है क्या ये नंबर आपने? देखिए महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं एक साल में 5 लाख का पंप इंस्टॉल करूं. ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चाहना है, लेकिन सिर्फ उनके चाहने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन इशू है या सप्लाई इशू है और भी बहुत इशू रहते हैं. सो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 1-1 लाख पंप के टेंडर निकाल रही है, और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके सब्सिक्वेंटली 1-1 लाख पंप के साथ साथ वो निकालती जा रही है, ऐसे कर रही है. सो आई थिंक सो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस साल 2 लाख पंप के आसपास, 2 या 2.5 लाख पंप के आसपास, इवन 3 लाख भी कर सकती है अचीव, जिस हिसाब से एग्रेसिव चल रही है गवर्नमेंट. सर, एक और चीज था कि कुसुम 2 में ऑन ग्रिड को कुछ प्रेफरेंस रहने वाली बात शायद से निकल रही थी. सो मतलब ऐसा कुछ है क्या कि ऑन ग्रिड विल बी द प्रेफर्ड मोड और उस पर फोकस रहेगा, और हम कितने तैयार है उस चीज के लिए? बिकॉज ऑन ग्रिड में अभी काम तो ज्यादा हुआ नहीं है कुसुम 1 में भी. देखिए पहली बात जैसे मैंने बताया कि कुसुम 1 में 2 कंपोनेंट आए थे, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी. कंपोनेंट सी वही बात थी कि वो ग्रिड को सोलराइज करेंगे ऑन ग्रिड को, और उसके बाद वो करेंगे पंप को अलग से करेंगे. तो डे 1 से कुसुम सी, कंपोनेंट सी किसी भी स्टेट एजेंसी को या किसी भी वेंडर को क्लियर नहीं था. इसलिए फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर्स में आप देखेंगे कुसुम सी की सक्सेस ऑलमोस्ट 0 है. तो यहाँ पर कंपोनेंट पीएम कुसुम 2 में
ये बहुत स्ट्रॉन्ग इशू हमने उठाया था सबने कि आप जो भी स्कीम निकालें वो बहुत क्लियर हो, लाइक कंपोनेंट बी के हिसाब से जैसे क्लियर है। बट किसी भी तरह की सोलर पंपिंग में अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है इंडिया में, सो ओसवाल इज फुल्ली कैपेबल एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑल दिस स्कीम। Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Next question is from Bharat Shah from ASK Investment Managers. Please go ahead. विवेक जी नमस्कार। नमस्कार भरत जी। नमस्कार भरत जी, भरत भाई नमस्कार। विवेक जी, एक महत्व का प्रश्न था कि गवर्नमेंट कुसुम स्कीम और सोलर पंप के लिए बहुत उत्सुक है, उसकी इकोनॉमिक्स भी सही है ग्रीड पंप के बदले। तो हमारी सभी चीजों देखते आप जो इकोनॉमिक्स बता रहे हो कि 27-28% का हमारा मार्जिन रहेगा, नेट मार्जिन 18 से 20% रहेगा, अगले कई सालों की 30% जो काफी बड़ी ग्रोथ है, कंपाउंडेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल और वगैरह एक्सेस की भी कोई परेशानी नहीं है और वर्किंग कैपिटल भी हमारी रिड्यूस होने जा रही है। हम जो आप बता रहे थे कि रिसीवेबल कम हो रहे हैं, तो ये एक ऑलमोस्ट यूटोपियन किस्म का आइडियल सिनेरियो नजर आता है कि मतलब हर चीज में हमारे हाथ में घी लड्डू है। तो थोड़ा इसमें यदि हमें संदेह डालना हो या कुछ उसमें स्केप्टिसिज्म डालना हो, तो आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस आ सकती है, क्या रिस्क है कि जहां इतना सुनहरा हम जो पिक्चर अस्यूम कर रहे हैं उसमें यदि चीजें गलत जानी है तो क्या गलत जा सकती है? ओके, थैंक यू भरत जी। डेफिनेटली भरत जी, आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपके ही पेज पे हूँ। मैं खुद ये मान के चल रहा हूँ कि इतना ज्यादा सुंदर, इतना लुक्रेटिव, इतना सब कुछ जो हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ड्रीम के हिसाब से काम हो रहा है कि इतनी बड़ी डिमांड। और मैं इसको बहुत रात को सोते हुए भी या वैसे भी सोचते हैं जब हम टीम बैठते हैं तो क्या क्या नेगेटिव फैक्टर आ सकते हैं। सो डेफिनेटली हमें, अगर हम ब्रॉडली बिजनेस माइंड को थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी सोचते हैं, तब भी ऐसा फीलिंग नहीं आ पाती हमें कि इसमें कोई नेगेटिव, ब्रॉडली कोई बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो आज गवर्नमेंट को करीब 8 करोड़ पंप, सोलर पंप की रिक्वायरमेंट है। आज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की भयंकर शॉर्टेज है। आज इंडिया हर तरह से सोलर को सस्टेनेबल पोजीशन में करने के लिए सोलर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। आज सोलर पंप के लिए गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट फार्मर की लैंड को यूज कर पा रहा है। आज जो सब्सिडी फार्मर को गवर्नमेंट दे रही है वो विद इन 2.5 साल में उसको वापस आ रही है। और सेकंड, गवर्नमेंट का पैसा बहुत इन्फ्यूज नहीं हो रहा है। तो हर तरफ से अगर हम सोचते हैं, प्लस आज के दिन ओसवाल पंप्स के पास जो कैपेसिटीज है या जो कॉन्ट्रीब्यूट, जो मार्केट में हमारा शेयर है वो भी बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कंपनी के बाद जो कंपनी ने 2022 में, 23 में, 24 में सोचा वो सब अचीव हो रहा है, 25 में सोचा वो अचीव हो रहा है, 26 में सोच रहे हैं वो अचीव हो रहा है। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरा भी है बहुत ज्यादा कि मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं नेगेटिव कैसे सोचूं और क्या सोचूं। मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग कई बार हो पाता है कि जेन्युइनली मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें नेगेटिव मैं क्या सोच पा रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए भी बड़ा एक ना मिस्ट्री बनी हुई है ये। क्योंकि विवेक जी, आप तो मंजे हुए बिजनेसमैन हो। हर बिजनेस में ऊंच नीच चलती रहती है। कोई कभी स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा तो केवल एनालिस्ट के प्रोजेक्शंस में ही हो सकता है। रियलिटी में तो कोई बिजनेस ऐसे क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, सालों तक कोई दुविधा के बिना एक सरखा ऊपर चढ़ता रहे और अच्छी ग्रोथ करता रहे,
ये जनरली मतलब बहुत रेयर संभावनाएं होती है। तो स्केप्टिसिज्म तो आता है कि इतना ये कुछ ज्यादा ही सुंदर सुहाना सपना जैसा महसूस हो रहा है। देखिए भरत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर मैं और मेरे फादर साहब बैठ के बात करते हैं और मेरे फादर मुझे बचपन से एक ही बात समझाते आए हैं कि जो ये बिजनेस है ये हमेशा अप एंड डाउन का एक खेल है। हर तरह का कभी लाइफ में स्मूथ नहीं हो सकता, बहुत अप भी जाएगा और कभी स्टेबल भी होगा, कभी डाउन भी जाएगा। तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, जो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और बहुत बड़ा है, हमारा एक्सपीरियंस उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जीरो है ऑलमोस्ट। और डेफिनेटली मैंने बहुत डीपली, क्योंकि एक बिजनेसमैन को एक इनसिक्योरिटी होना स्वाभाविक होता है, एक वो इनसिक्योर रहता है हमेशा, सही बात है ना, उसको फ्यूचर को लेके भी होता है। पर जेन्युइन और वैसे तो बाय नेचर मेरा एक ऐसा है कि तो विवेक जी बड़ी गलतियां हो जाती है। राइट। तो लेकिन जेन्युइनली भरत जी, इसमें हम लोग बहुत हर महीने बैठ के हमारी एंटायर टीम इवेल्युएट करती है कि इसमें से क्या क्या माइनस पॉइंट। ऐसा तो नहीं कि हम लोग भागते जा रहे हैं और एक जगह हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग के जा रहे हैं। तो हम लोग टाइम टू टाइम एक्सटर्नल एजेंसी से भी रिपोर्ट लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं, डिपार्टमेंट्स में बात करते हैं, मार्केट के भी सर्वे करते हैं। सो जेन्युइनली अभी तक हमें ना कोई इसके नेगेटिव पॉइंट्स हमें नहीं समझ आ रहे। मे बी इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, आई डोंट नो, पर हमारे पास उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं आ पा रहा। तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पर मैं खुद हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ और इसलिए शायद मैं जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव भी हो गया हूँ, शायद एक वजह हो सकती है सर जी। क्वांटिटेटिव टर्म में हमें लास्ट ईयर 24-25 में कितने पंप टोटली बेचे? 24-25 में हमने 24-25 कितना हमने करीब सर 1,60,000 पंप के आसपास हमने FY25 में बेचे हैं सर। कितने? 1,60,000। 1,60,000। और उसके अगले साल में कितना आप कह रहे थे? FY24 में सर जी अराउंड 1 लाख। 1 लाख। और मतलब अभी हम 25-26 में हम सोच रहे हैं कि 2.5 लाख पंप के करीब का बिक्री होना चाहिए। 25 में कितना? 25-26 में जितना नंबर्स में अराउंड टिपिकली हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर 2.25 लाख से 2,35,000 के आसपास के पंप की फिगर लेके। यस 2.25 से। तो आप 50 से 60% ग्रोथ कह रहे थे, तो मतलब हायर एचपी वाले पंप की मात्रा ज्यादा होगी? क्योंकि नहीं सर, इसमें मिक्स होगा भरत जी, हायर भी होगा, लोअर भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीपल रेंजेस के पंप बनते हैं। सो बेसिकली जब हम 50 to 60 पंप की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं नंबर्स ऑफ पंप की बात नहीं करता, मैं वहाँ पर रेवेन्यू की बात करता हूँ, क्योंकि हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो इसलिए मिक्स बेहतर रहेगा, मतलब हायर एचपी के पंप रहेंगे कि रियलाइजेशन ज्यादा होगा, पंप वाले 50% ना हो। लेकिन क्या होता है भरत जी, एज ए हमें अपने कस्टमर को रिटेन या सस्टेन करने के लिए हमें बास्केट पूरी बनानी पड़ती है। हमें सस्ते पंप भी बनाने पड़ते हैं, महंगे भी, जिसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन है वो भी। हम ये नहीं कर सकते सिर्फ ज्यादा वैल्यू एडिशन वाले पंप भी बनाए, तो वो एक चैलेंज रहता है कंपनी में। हमें हर तरह का रेसिपी बनानी पड़ती है ताकि हमारे कस्टमर्स को हम टाइमली हर चीज कैटर कर सके और उनको सस्टेन कर सके। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। मतलब 1,60,000 से 2.25 लाख गिनता हूँ तो 40% ग्रोथ होती है, बट रेवेन्यू आप 50 से 60 कह रहे थे, मतलब मिक्स हमारी फेवरेबल रहेगी, इसकी वजह से आप राइट 100%। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं 50 से 60% में हमें बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी आ रही है, जिसमें हमें किसी तरह का भी कोई ऐसा नहीं आ रहा कोई चैलेंज होने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ भी हम अगर नंबर्स की बात करें तो वो भी 2,20,000, 25,000, 2,35,000 तक नंबर हमें दिख रहा है कि नंबर्स आसपास है। डिपेंड ऑन द हार्स पावर, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन नंबर्स में आ सकता है, अदरवाइज बाकी कहीं कोई चैलेंज नहीं है। इसमें एक्सपोर्ट्स कितना होगा विवेक जी? सर अगर हम बात देखें तो करीब 3%, FY25 में हमारा करीब 4% के करीब एक्सपोर्ट था, और इस साल जो टोटल रेवेन्यू है हम 3% का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करीब 40 to 50% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। बट मे बी इससे ज्यादा हो सकता है, जो कि हमारी कंपनी 4% को फोकस करके चल रही है। ये भी मतलब 3 या 4% जो आप कह रहे हो रेवेन्यू का फिगर कह रहे हैं या वॉल्यूम? मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ सर।
जी जी जी। और एक लास्ट क्वेश्चन विवेक जी, आपने स्पेशलाइज्ड पंप का जिक्र किया था पहले, जैसे हेलिकल पंप, केमिकल पंप्स, दूसरे इंडस्ट्रियल पंप्स, और भी 3-4 प्रोडक्ट का जिक्र किया था। आप जरा बताओगे वो? ओके सर, डेफिनेटली। देखिए, जो हमने जिक्र किया था कि हम लोग धीरे धीरे कंपनी में स्पेशल पंप्स लाइक इंडस्ट्रियल पंप्स, बॉयलर फीड पंप्स, केमिकल पंप्स, हेलिकल पंप्स, पीसीबी पंप्स, हाई प्रेशर राइज पंप्स, इस तरह की टोटल रेंज में हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा R&D टीम ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे हम उम्मीद करें कि हम लोग पहला हेलिकल पंप की जो लॉन्चिंग है 3rd क्वार्टर के एंड में हम लोग मार्केट में सैंपलिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग बॉयलर फीड पंप्स के भी कुछ सैंपल्स की प्लान कर रहे हैं कि 3rd क्वार्टर के एंड में या 4th क्वार्टर में हम लोग बॉयलर फीड पंप्स की भी सैंपलिंग मार्केट में करें। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टीम उसको R&D करती जाएगी, तो हम मार्केट में पायलट सैंपल्स लॉन्च करके उसका फीडबैक लेने के बाद फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे और मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे सर। जी, थैंक यू विवेक जी, एंड आपको, आपकी टीम को बड़ी शुभेच्छा। थैंक यू भरत जी, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। Thank you. Next question is from Deval Shah from 361. Please go ahead. Yeah, hi sir. Hello, Thank you for the opportunity. मेरे दो क्वेश्चन थे। वन है, थोड़ा लाउड बोलेंगे सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड। बेटर है सर? हाँ, अब बेटर है सर। हाँ, मेरा ये सवाल था, कुसुम 2 स्कीम में कुछ टेंटेटिव साइज आप इंडिकेट कर सकते हो क्या? देखिए सर, मैं टेंटेटिव साइज इंडिकेट नहीं कर सकता। मैं एक आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो अभी 3 से 4 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, उसमें जो डिस्कशन हुई है वो मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ सर। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो हमारी मैडम MRI के चेयरमैन हैं, उनकी जो MD हैं, उन्होंने सारी स्टेट एजेंसी से ये बोला है कि मुझे एट लीस्ट आप अर्जेंट से अर्जेंट 1 करोड़ से ज्यादा पंप की रिक्वायरमेंट आप मुझे भेजो, ताकि हम इसको इवेल्युएट करके ज्यादा से ज्यादा नंबर की PM कुसुम 2 की स्कीम को लॉन्च कर पाए, जो अगले 1 साल से 2 साल में हम पूरी कर पाए। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ओपनली सब वेंडर्स के सामने, सब स्टेट एजेंसीज को बोली है। सो ये एक मैसेज मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ओके, एंड हमारा जो ये 29,961 पंप का, उसका और मिक्स दे सकते हो क्या सर? सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। डायरेक्ट टर्न की एंड इनडायरेक्ट कितना मिक्स होगा सर? ये डायरेक्ट टर्न की है सर। ये जो 30,000 पंप की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल डायरेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट। ओके, गॉट इट। एंड इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन, अभी कोई स्टेट या PM कुसुम में कुछ बिडिंग में है पाइपलाइन ऑन? सर, PM कुसुम में डिफरेंट स्टेट्स में जो हमारे टेंडर आ रहे हैं, ओसवाल हर जगह वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मागलपेला का भी 1 लाख पंप का टेंडर आया, उसमें गवर्नमेंट हमने पार्टिसिपेट किया। वो अगले हफ्ते 10 दिन में वो ओपन होने वाला है, मतलब उसमें टेक्निकल और कमर्शियल निकल जाएंगे। ऐसे ही हर स्टेट में थोड़े टेंडर आ रहे हैं। हरियाणा में जो टेंडर था उसका आया था, उसका वो क्लियर हो गया है, तो उसका पोर्टल खुलने वाला है। तो ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस है सर। ये मतलब बहुत ऐसे प्रोसेस है, बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं। उड़ीसा में एक टेंडर है, वो चल रहा है उसका, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी अगले 1 महीने में खुलने वाला है। तो इस तरह का चीजें बहुत है सर जो चल रही है। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Next question is from Somil from Kotak Mutual Fund. Please go ahead. नमस्कार विवेक जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ये साल का आपने गाइडेंस दिया है 2,25,000 पंप्स, इसमें से नॉन सोलर पंप्स कितना होगा वेरी ब्रॉडली? सर देखिए, अगर मैं सोलर पंप की बात करता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मान के चलिए कि अराउंड 50-50 के आसपास का परसेंटेज लेके चलिए, अप्रोक्सीमेटली 4-5% प्लस माइनस किसी भी साइड हो सकता है।
तो एक ब्रॉडली फिगर की बात करता हूँ, तो सोलर पंपिंग अराउंड 50% एंड नॉन सोलर पंप अराउंड 50%. नॉन सोलर 50, बिकॉज नॉन सोलर आपका सर पिछले साल कितना ऑलमोस्ट 65,000 था रफली. देखिए हमने FY26 में करीब 1,60,000 के करीब हमने किए. सो अराउंड 3% थी. 86,000 वाज नॉन सोलर एंड 74,000 अराउंड के करीब. ओके. एंड सर इसमें ब्रॉडली मैं पैकेज का प्राइसिंग आपने बताया, मैं भूल गया. 3 HP और 5 HP का टोटल टर्न की का जो बिडिंग हो रहा है अभी, क्या प्राइसिंग पे हो रहा है महाराष्ट्र में? 3 HP में अगर आप स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेंडर 1,80,000 के आसपास 3 HP का गया है. सो बट अगर हर स्टेट में ये वेरी कर रहा है, कहीं पर 1,80,000 है, कहीं पर 184 है, कहीं पर 188 है, कहीं पर 190 है. सो इट वेरी फ्रॉम 180 to 190. सो लेकिन जो रिसेंटली महाराष्ट्र में गया है, सो इट इज अराउंड 1,80,000 का गया है. और ये 5 HP का क्या होगा सर? 5 HP का इट इज अराउंड 260 के आसपास. 260 के आसपास. एंड जो खाली पंप्स जो सोलर पंप सप्लाई करते हैं टू अदर प्लेयर्स, जो रफली 47,000 था 23 में, अराउंड 34-35 था 24 में, उसका क्या प्राइसिंग है सर अभी? अगर हम पंप मोटर कंट्रोलर की बात करते हैं तो सिर्फ 3 HP के अराउंड मान लीजिए 30,000 के आसपास. ओके. तो सर टोटल पैकेज प्राइसिंग में थोड़ा सी गिरावट हुई है, बिकॉज ये आपका 3 HP का पंप रफली 2,10,000 हुआ करता था, तो वो 5-10% का डिक्लाइन आया है. दिस विल बी लार्जली बिकॉज ऑफ द सेल प्राइसेस आई अज्यूम. नहीं ऐसा है. ये क्या हो रहा है, डेफिनेटली जो पहले की एवरेज आ रही थी वो 1,90,000 की एवरेज थी. जो अभी हमारे पास एवरेज आ रही है वो 183-84 की एवरेज आ रही है. ठीक है. तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में ये फॉल आया है. फॉल इसलिए आया है कि कुछ नए लोग जो इसमें बिड कर रहे हैं, और इसमें पूरी स्कीम में क्या सिस्टम है सुबल जी, कि आप जो भी बिड करेंगे L1 रेट इज ओनली फॉर डिस्कवरी. सो क्योंकि EPC प्लेयर्स हर चीज बाहर से प्रोक्योर करते हैं, और बाहर से प्रोक्योर करके करते हैं तो उनको EPC प्लेयर्स को जो मार्जिन मिलता है वो 7 से 8% का मार्जिन मिलता है. सो जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत कम एंट्री है, उनको लगता नहीं है कि हम लोग एंट्री कर पाएंगे. सो वहां पर थोड़ा डेस्परेटली वो 3-4% का कंप्रोमाइज करके वो L1 आ गए. सो अब टेंडर प्रोसेस में हम लोगों को ब्रॉडली बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग अपना और वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं या और भी कर रहे हैं. तो वो अगर हमें 1-2% का मार्जिन ब्रॉडली कम हो रहा है तो हम दूसरी जगह से बफर लेके चल रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं. तो दिस इज द ओनली रीजन. बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इफेक्ट ओसवाल पे तो नहीं है. ओके. सो ये सब मार्जिन्स जो ये क्वार्टर आपने रिपोर्ट किए ब्रॉडली 26 फुल ईयर 27 में 27% के आसपास आप लग रहे हैं स्टेबल हो सकते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट 27 EBITDA मार्जिन ना? हाँ जी सर, ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन जो आप. देखिए हमने जो दिए, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं पैट की बात करता हूँ, सो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमने जो बात की है कि 18 से 20% के बीच में हम लोग पैट मार्जिन लेके चल रहे हैं. सो वहां पर हमें किसी तरह का भी कोई भी चैलेंज दिख नहीं रहा है कि हमें कोई चैलेंज आएगा. हाँ डेफिनेटली मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर. सो मे बी क्या होता है कि सर क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट ईयर वो रहने वाला है. वो थोड़ा बहुत, क्योंकि कई बार हमें अपने किसी क्वार्टर में ऐसे सप्लाई करनी पड़ती है जो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कम प्रॉफिट वाले को पहले करना पड़ता है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में. सो दैट कैन बी वेरी श्योर. एंड सर लास्ट क्वेश्चन, जो अपना नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो 135 जो आपने दिया है प्रेजेंटेशन में, ये क्या प्लान है आगे चल के? टोटल कितना 120-125 डेज ये साल के एंड में दिख जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट ईयर तक दिख जाएगा? देखिए मैं ना बहुत ज्यादा श्योर था कि ये जो डेटर्स डेज हैं मेरे 150 to 160 डेज रहने वाले हैं क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 तक. मैं ये बहुत श्योर था कि मुझे इसमें किसी तरह का भी कोई
मतलब सरप्राइज नहीं लग रहा था कि कम होने वाले हैं, बट रियली आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट टीम से ज्यादा वी अप्रिशिएट गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया यहाँ पर, और ये जो डेटर्स डेज कम हुए। सो यहाँ से हमारी होप बड़ी है। जो हम 130, 135 डेज या ये सब जो डेटर्स डेज एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर थर्ड क्वार्टर, ये हमें फर्स्ट क्वार्टर में अचीव हुआ है। सो डेफिनेटली हमें लग रहा है ये और धीरे धीरे 5 दिन 4 दिन कम होते जाएंगे, धीरे धीरे कम की तरफ जाएंगे, बढ़ने की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बढ़ने की तरफ, बट ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from Dhawan Shah from Alpha Accurate Advisors. Please go ahead. Yeah, thank you sir for the opportunity. मेरा क्वेश्चन ये है, ये FY24-25 में यू सेड ओसवाल डिड 1 लाख पंप का इंस्टॉलेशन इन 24 एंड 1.6 लाख पंप का इंस्टॉलेशन इन 25। इंडस्ट्री का कितना हुआ रहेगा इंस्टॉलेशन? नहीं, मैं समझा नहीं, आपने क्या बोला सर? मैं FY24 में जैसे बोला कि ओसवाल ने 1 लाख पंप का इंस्टॉल किया था, FY25 में 1.6 लाख पंप किया था। नहीं सर, मैंने ये बोला था कि टोटल FY24 में ओसवाल पंप्स लिमिटेड ने 1 लाख पंप सप्लाई किए हैं, इसमें इंस्टॉलेशन भी आ गई और हमारे नॉन सोलर पंप भी आ गए, टोटल क्वांटम। एंड FY25 में 1,60,000 पंप किए, सोलर एंड नॉन सोलर। इसमें एक्सपोर्ट भी आ गया, पैन इंडिया प्राइवेट नेटवर्क भी आ गया, इंस्टॉलेशन भी आ गया, इट इज सब तरह के पंप आ गए। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करता हूँ तो अराउंड 70,000 के करीब हमने FY25 में इंस्टॉल किए सोलर पंप। हाँ, तो वो समझ गया। तो सोलर पंप अगर अपन देखते हैं तो मोटा मोटी 70,000 पंप का इंस्टॉलेशन किया 25 में। 24 में कितना किया रहेगा? 24 में इट वाज अराउंड 48,000। और इंडस्ट्री का कितना हुआ रहेगा? देखिए, अगर FY24 तक देखते हैं तो पिछले 10 सालों में टोटल 14 लाख में से FY24 तक 3.5 लाख पंप इंस्टॉल हुए थे। और यहाँ पर अगर हम और आगे बढ़ते हैं FY25 तक तकरीबन 7 लाख पंप इंस्टॉल हुए हैं। टोटल 7 लाख पंप के 7.5 लाख पंप के करीब इंस्टॉल हुए हैं आउट ऑफ 14 लाख। और रिमेनिंग पंप FY26 में जो कंपनी का प्लान है, वो गवर्नमेंट का प्लान है, वो इंस्टॉलेशन का है। नहीं टिल FY24 नहीं, ओनली FY24 में जैसे आपने 48,000 पंप किया, इंडस्ट्री का कितना हुआ रहेगा? अराउंड मान लीजिए करीब 170,000-180,000 पंप इंस्टॉल हुए थे। ओके, ठीक है। और FY25 में जो आपने 70,000 पंप किया, उसमें इंडस्ट्री ने कितना किया रहेगा? अराउंड 3 लाख पंप। 3 लाख पंप। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं सेंटर का बजट आउटले देखता हूँ कुसुम का, राइट, FY24 में इट वॉज 1100 करोड़, FY25 में 2500 करोड़ हो गया। तो आई थिंक दैट शोज कि इंडस्ट्री का भी अगर पंप का अगर वॉल्यूम नंबर देखो तो वो भी मोटा मोटी डबल हुआ है, राइट। अभी अगर मैं FY26 का बजट आउटले देखता हूँ तो विच इज मोर और लेस द सेम ऑफ FY25, राइट। अभी आप जैसे FY26 का आपने जो बताया कि 235,000 पंप आप इंस्टॉल करना चाहते हो, उसमें 50% आपका मोटा मोटी सोलर रहेगा, विच मीन्स मोटा मोटी 1,10,000 से 1,20,000 पंप का आपका टारगेट है सोलर का, बराबर। अभी सेंटर का बजट आउटले मोटा मोटी सेम है, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ आएगा किधर से, मुझे वो समझना है। देखिए ऐसा है, आप बजट जो गवर्नमेंट ने लिया वो फ्लेक्सिबल बजट है, नंबर 1 पॉइंट। क्योंकि गवर्नमेंट को ये फेथ नहीं था अभी तक कि इस स्कीम में इतने नंबर इंडस्ट्री इंस्टॉल कर देगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में कभी भी बजट को लेके बहुत एग्रेसिव नहीं किया। अगर आप इस बजट में देखेंगे लास्ट ईयर भी, तो गवर्नमेंट का जो भी इनिशियली बजट था, बीच में गवर्नमेंट उसमें एड ऑन करती थी। लास्ट ईयर भी करीब 300-350 करोड़ का एड ऑन किया था गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर इवन गवर्नमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल कि अगर जैसे जैसे क्वांटम जाएगा, ये मिनिस्टर ने हर मीटिंग में भी क्लियर बोला है कि गवर्नमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत एग्रेसिव और बहुत ही दिल के करीब का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को फंड को लेके या किसी भी तरह को लेके कोई इशू नहीं है। सो मुझे नहीं लगता, ना ही हमारे पास किसी तरह का ऐसा इशू फंड्स को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कभी उठाया है। सो डेफिनेटली हम इस बारे में अब तक ये अपडेट है कि फंड को लेके कोई इशू नहीं है। दैट वी आर वेरी मच अपडेटेड। समझ गया। और दूसरा चीज समझ लो, सेंटर का अगर बजट आउटले इंक्रीज भी होता है,
अभी स्टेट के हिसाब से जैसे देखे, आप बोल रहे हो कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपना स्कीम लेके आ रहे हैं, सो डू यू हैव द आइडिया कि हर एक स्टेट का कितना बजट आउटले रहेगा उसके बजट डॉक्यूमेंट में? जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, बड़ा जो भी स्टेट है। इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में बजट को लेके किसी तरह का कंसर्न या किसी तरह का चैलेंज अभी तक हम लोगों ने फेस नहीं किया, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ। समझ गया। पर मोटा मोटी अभी भी ऑर्डर कम हो रहे हैं ना, मतलब वो समझना वो है कि क्योंकि आई थिंक स्टेट साइड पे भी स्टेट गवर्नमेंट को भी बजट का प्रॉब्लम ही है, वो तो कैपेक्स में भी दिख रहा है। पहली बात तो मैं इसमें बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं हूँ कि ऑर्डर कम हो रहे हैं। कि लास्ट ईयर अगर 2,80,000 3 लाख के करीब पंप इंस्टॉल हुए हैं, तो गवर्नमेंट तो इस साल 6 लाख पंप चाह रही है इंस्टॉल करना, और अगर 3 लाख पंप या 4 लाख पंप इंस्टॉल होते हैं तो भी नंबर तो इस साल बढ़ने वाले ही हैं इंस्टॉलेशन के लास्ट ईयर से, ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है। तो नंबर्स को लेके पूरी इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को आज के दिन बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस साल नंबर्स बहुत अच्छे इंस्टॉल होने वाले हैं, और यही कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का पीएम कुसुम 2 को लॉन्च करने में एक हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि इंडस्ट्री तैयार हो गई है ज्यादा से ज्यादा क्वांटम को सप्लाई करने के लिए, तभी वो पीएम कुसुम 2 को बड़े एग्रेसिव वे में बात कर रही है। अदरवाइज अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद वो लॉन्च भी ना करते। बराबर। तो आप ये FY26 में इंडस्ट्री का इंस्टॉलेशन मोटा मोटी 4.5 लाख फॉर्म का इंस्टॉलेशन आप पकड़ रहे हो कंपेयर टू 3 लाख फॉर्म लास्ट ईयर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वी आर क्वाइट वेरी श्योर इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, और गवर्नमेंट जो टाइमली मीटिंग कर रही है और बड़े मोटिवेशन कर रही है, तो ये डेफिनेटली इसे अप्रिशिएबल गवर्नमेंट की साइड से है ये। सो इंडस्ट्री इज वेरी क्वाइट, मैं नहीं मतलब पूरी इंडस्ट्री श्योर है इस मामले में। ठीक है सर, ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। Nuvama, I think we'll have to keep this as the last question because he has a flight to catch. We are going to Singapore for a yeah, he can't wait. He missed his flight. Yeah, okay, we convey. Yes, sir. We'll take that as the last question. I would now like to hand the conference back to the management team for any closing comments. सर थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मुझे आप लोगों से बात करके फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करके डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। एंड वी आर श्योर कि जो ट्रस्ट आप सबने ओसवाल पंप में दिखाया है या दिया है, सो ओसवाल पूरी टीम के साथ में बहुत एग्रेसिवली काम करेगी, और आपका ट्रस्ट पूरे बनाने की पूरी हमारा कमिटमेंट है कि आपको आपका ट्रस्ट रहेगा ओसवाल में। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Thank you. Thank you all of you. Thank you very much. Thank you all of you, sir. On behalf of Nuvama Institutional Equities, that concludes this conference. Thank you for joining us, ladies and gentlemen. You may now disconnect your lines.